Hello everybody. Now we will discuss the volume and surface area of a solids in one shot only. So cuboid is, this is your cuboid, means the room is also in the shape of the cuboid. This is already we discussed in the part 1. This is your length and this is your breadth and this is height. Means room is also in the shape of the cuboid is there, where the length, breadth and height is there. And if you want to calculate the volume of this cuboid, the general formula to calculate the volume is area of the base multiplied by height. You will get the volume of any one of the pot is there. But important point is here, if you are going to apply, अगर मैं इस जनरल फॉर्मूला को अप्लाई करता हूँ तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, इट मींस ये हुआ कि वॉट एवर इज योर पॉट इज हियर, वॉट एवर इज द एरिया इज हियर, जो एरिया यहाँ पर है टिल द हाइट यू आर टेकिंग शुड नॉट बी चेंज. जो एरिया यहाँ पर है वॉट एवर इज द एरिया सेम मस्ट बी हियर, सेम मस्ट बी हियर, देन दिस जनरल फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. अगर ये चेंज होता है, सपोज योर पॉट इन दिस शेप, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और, एवरी प्लेस पर it is going to change, then this is not applicable. So if we apply the general formula for this cuboid, volume of the cuboid will be, area of the base will be length into breadth, L into B is, you will get the area of the base, that is multiplied by H, you will get the volume of the cuboid. See, important point is here, क्या LBH का unit should be the same. If it is in centimeter, this should also be in centimeter, this should also be in centimeter. Unit should be the same. अगर यूनिट अलग अलग है तो यू हैव टू मेक इट सेम इज देयर. Lateral surface area, that is means we are interested the area of the four walls. So four walls is there, 1 2 3 4. So if you want to calculate, अगर आपको इस दीवार का निकालना है तो क्या करेंगे, L into H, L into H. What we will do, L into H. जो इस दीवार का होगा, फ्रंट की दीवार का भी यही होगा, L into H plus. Now area of that wall, B into H. You will get the area of that wall, B into H. वही सामने वाली का, तो इफ यू विल एड दिस वन ओनली, यू विल गेट 2 इन ब्रैकेट L plus B into H. So this is what general formula of the lateral surface area of any one of the figure. Again, perimeter of the base multiplied by the height. So this is 2 L plus B, that is the perimeter of the base is multiplied by H. Again same condition, whatever is the perimeter, जो perimeter यहाँ है वही यहाँ, everywhere should be the same till the height, जिस height तक आप ले रहे हैं, then this is applicable. Otherwise this formula is not applicable. Then surface area means complete, including roof and floor, that is 2LB plus 2BH, 2LB plus 2BH. This is the area of the four walls, plus this is this 2LB plus 2LH is the area of the four walls, and this is 2BH, means base into base, L into B you will do, this one is L into B you will do, you will get the area of the floor, and the roof is this one is there only. यहाँ से you are getting 2LH plus 2BH, ये area of the four walls plus floor, and the roof you are going to add, you will get the total surface area. Surface area means total. This is your total. Diagonal you want to, diagonal the longest rod which you can place, that is under root L square plus B square plus H square. अब इसमें एक कंडीशन और है, suppose any cuboid is there, means suppose box is there. Suppose you have a box है यहाँ पर. For example, this is your box, and in this box the top is missing. इस box में top missing है, top is missing. Suppose your top is missing. तो in that case surface area आपका क्या होगा, 2LH plus 2BH. This is your L and B. Base, area of the base is there, means base is there, LB, but top is not there, lid is not there. Top means lid, ढक्कन नहीं है. Roof is not there. If you are talking about the room only, तो box में क्या ये ढक्कन है, lid is there, this is missing, तो 1 LB will be missing. So this will be the surface area. So this is in case of the cuboid is there. अगर हम if we talk about the cube, अगर हम cube की बात करें तो cube में क्या होता है, length, breadth and height all are equal. Look at here, यहाँ देखिए, here is the length, breadth and height all are equal. Whatever will be the length, same will be breadth, same will be height. If all are equal, that is cube. अब क्यूब का वॉल्यूम निकालें तो जनरल फॉर्मूला अगर आप निकालेंगे, लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस, दिस इज योर L मींस लेंथ एंड ब्रेथ इज आल्सो द L, सो यू विल गेट L into L, एरिया ऑफ द बेस multiplied by height. So this H is also the L because length, breadth and height all are equal.
क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल, सो इनटू एल, सो व्हाट यू विल गेट एल इनटू एल इनटू एल, दैट इज एल क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज देयर. नाउ एरिया ऑफ दैट यू कैन से द लेटरल surface area of cube. Lateral surface area means we are interested to find the area of four walls. देखिए L into H you will do, so L और H both are equal, so L into L plus सामने वाली का भी यही होगा, this one B into H, but B is also equal to H is equal to L, so L into L plus L into L. Front is also same. So this is you are getting L square plus L square plus L square plus this is equal to 4 into L square. So this is the lateral surface area and you can say the area of four walls. अब इसको क्या बोल सकते हैं, area of the four walls. Now surface area means total. Surface area means total. Total surface area means we are including all the faces. 6 faces are there. फेसेस कितने होते हैं, टोटल 6. ऑल द फेसेस का एरिया निकालेंगे तो दिस इज द एरिया ऑफ द 4 फेसेस, 4 वॉल्स, 1 2 3 4. फ्लोर एंड रूफ इज ऑल्सो इंक्लूड. तो देखिए 4L स्क्वायर एरिया ऑफ 4 वॉल्स. फ्लोर का क्या होगा, L इंटू बी, बट L इज इक्वल टू बी, तो L इंटू L प्लस रूफ इज ऑल्सो L इंटू L. सो व्हाट यू विल गेट, 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दैट इज 6L स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज देयर. 6 इंटू साइड स्क्वायर यू विल डू. अगर 6 इंटू साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब. 4 इंटू साइड स्क्वायर यू विल डू, यू विल गेट द टोटल लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. वॉल्यूम दिस L क्यूब. सिमिलरली द डायगोनल will be equal to under root, that is L square B square plus H square, but all are equal to L square plus L square plus L square. So this is under root 3L square, that can be written as L root 3. So this is your diagonal is there, that is side into root 3 you will get the longest rod जो इस क्यूब में हम प्लेस कर सकते हैं. See, अब again here is the same problem. Suppose there is a box. अगर मान लीजिए मैं कहूं ये बॉक्स है और इस बॉक्स का टॉप मींस लिड मिसिंग है, ढक्कन मिसिंग है, तो उसके इसमें सरफेस एरिया क्या होगा, एक L स्क्वायर, L इंटू L विल बी रिमूव्ड. यहां से क्या होगा, एक जो है रूफ इज नॉट देयर, तो 1 L स्क्वायर गॉन, तो यू विल गेट 5 इंटू L स्क्वायर. सो 5 इंटू साइड स्क्वायर you will get the area of that one whose top is missing is there only. Now have a look. Okay, now we will talk about the cylinder. See, the cylinder we are taking, this is your cylinder, this is, see here we are talking about the right circular cylinder. हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर कब होता है, जब दोनों साइड से हाइट, ये H1 इधर भी H2 must be equal, then that is a right circular cylinder is there. Otherwise, see now, this is also the shape of the cylinder is here, but this H1 and H2 is not equal. So हम इसकी बात नहीं कर रहे. I'm not talking about this one. I'm talking about this right circular cylinder. See, this is means height is same is there only. तो अगर finally you are saying, then this is your cylinder and this is the radius. ये radius है and this is your height. So अगर हम if we talk about the curved surface area, कर्व सरफेस एरिया मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर वन. केवल हम इसके बाहर इसकी आउटर की बात कर रहे हैं, दैट इज इन द शेप ऑफ, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी. तो इसका जब सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया का, क्योंकि दिस इज द शेप इज इन द शेप ऑफ द कर्व की शेप में, इसलिए वी आर सेइंग कर्व. अदरवाइज फ्लैट इज देयर, वी आर सेइंग लेटरल. दिस द डिफरेंस इज देयर. तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन. तो जनरल फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, perimeter of base multiplied by height. This is the general formula. इसी general formula से we are getting the surface later curved surface area means outer. देखिए, look at here, curved surface area CSA.
पेरीमीटर क्या होगा दिस वन, circumference, that is 2 pi r multiplied by h. This is height, then this is, it means 2 pi rh is your curved surface area. कंडीशन क्या है, सेम, जो पेरीमीटर यहां पर है that should not be changed till the height you are taking. जिस हाइट तक आप ले रहे हैं उस तक ये पेरीमीटर should not be changed. ये फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है इस तरह के फिगर के लिए. मींस सपोज दिस फिगर यू आर टेकिंग, यहाँ पेरीमीटर कुछ और है, यहाँ कुछ और है, एवरीवेयर इट इज गोइंग टू चेंज. हियर इज द P1, P2, P3, P4, they are not equal. P1 is not equal to P2, likewise not equal to P3, they are not equal, then this is not available. तो आपको कर्व सरफेस एरिया निकला 2 pi RH. अगर इफ वी टॉक अबाउट सरफेस एरिया, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ये तो होगा 2 pi RH is the this one. टोटल सरफेस एरिया मींस दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, टोटल. तो ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा. दिस इज इन द शेप ऑफ द सर्कल एंड टॉप इज ऑल्सो देयर, हियर इज ऑल्सो पाई आर स्क्वायर. तो इसको कंबाइन करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 2 pi r h प्लस 2 pi r स्क्वायर दिस वन. तो ओन कन्वीनियंस के लिए यू कैन टेक 2 pi r कॉमन, h प्लस r, एंड दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया. मींस base and top both are included here only. Now volume, general formula for volume, area of the base. So area will be equal to what, area of this base, that is pi r square, and multiplied by h by this side, so you will get the volume. The formula for the volume, pi r square into h. Means if you know the radius and height, you know the radius and this side, you can calculate the volume of this one, you can calculate the curved surface area, you can calculate total is there only. But one point is here only, look at here. Sometime what happens कि देखिए आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है, दिस इज देयर, वी नो द रेडियस r पता है, वी नो द हाइट इज देयर. सपोज इसका दिस टॉप इज मिसिंग, टॉप मिसिंग है, मीन्स लिड इज नॉट देयर, ढक्कन नहीं है इसका लिड. तो उस केस में सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 pi r h प्लस, मीन्स ये प्लस दिस बेस होगा, प्लस pi r स्क्वायर, दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया. उस केस में ये pi r स्क्वायर इज मिसिंग, दिस वन इज मिसिंग, ये है ही नहीं. तो दिस आउटर वन प्लस बेस इज देयर, दैट इज 2 pi r h plus pi r square. So this is the total surface area of the cylinder. Now suppose hollow cylinder है, now we are taking the hollow cylinder. Look at here now. अगर मैं hollow cylinder लूं, hollow, see suppose the cylinder is given, cylinder के अंदर cylinder like this is this one, you can take this is there, इसकी रेडियस स्मॉलर, दिस इज स्मॉलर, एंड बाहर आउटर इज कैपिटल, दिस इज योर h. तो अगर मैं सिंपली इफ वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, पहले वॉल्यूम की बात करते हैं. वॉल्यूम विल बी, दिस इज वी आर टेकिंग hollow cylinder, we are taking hollow cylinder, this one. तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, इस पूरे आउटर में से we are talking about this one is there, we are talking about, if we talk about the volume of this one, means I am talking about the volume of this metal, volume of metal जिससे बना हुआ, तो that will be equal to क्या होगा, बाहर के आउटर में से, that is pi कैपिटल R स्क्वायर इंटू h से अंदर का h is there, small r, pi r square into this one, you subtract, so you will get the volume of the metal जिससे बना हुआ है. अगर मैं बोलूं what is the volume of this hollow cylinder, तो क्या होगा, केवल ये वाला जहां पर we can put the, we can fill it this one only, that it will be, फिर क्या होगा, pi r square, small pi r square h. लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ द मेटल की बात करते हैं, हॉलो है, इस जो मेटल से बना हुआ उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो क्या करना है, आउटर से इनर सब्ट्रैक्ट करो, तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस मेटल इज देयर. See, similarly, suppose you want to calculate the surface area. I am taking the total surface area.
तो देखिए इस आउटर का बाहर का पूरा टोटल दैट इज 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस अंदर का दिस वन 2 पाई स्मॉल आर एच, क्योंकि अंदर का दिस इज द रेडियस, इनर रेडियस इज स्मॉल आर, आउटर रेडियस इज कैपिटल आर, तो इसका इनर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, आउटर दिस वन, आउटर पूरा ये, इनर मीन्स इसके अंदर वाला, दिस इज नाउ प्लस, नाउ दिस पोर्शन इज ऑल्सो देयर बिकॉज वी आर टेकिंग द टोटल, मीन्स आप ऐसे देखिए लाइक हियर, मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन, दिस एरिया इज ऑल्सो देयर, तो दिस इज योर स्मॉल आर एंड दिस इज योर आउटर इज कैपिटल आर, तो इस पोर्शन का एरिया अगर निकालें तो क्या होगा, पाई आउटर सर्कल में से इनर सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दें, आउटर में से यू आर गोइंग टू इनर सब्ट्रैक्ट द इनर सर्कल, यू आर गेटिंग द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, दिस वन, और जो जितना एरिया वट एवर इज द एरिया इज हियर, जो यहां होगा वही बेस में होगा, तो देखिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर ट्वाइस वी विल ऐड, सो दिस इज द total surface area of this hollow cylinder is there. You want to calculate the volume of the metal is there, that this one is, from outer one you can subtract this is there only. Have a look. See, similarly agar if you want to calculate the curved surface area, curved surface area means हमें क्या पता करना है, इसका आउटर का, दिस आउटर वन, और इसके अंदर वाला मीन्स एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस अंदर का ये वाला, और ये अंदर का, दिस इज इसके अंदर वाला मीन्स दिस वन इंटरनल सरफेस एरिया, तो एक्सटर्नल विल बी व्हाट, आउटर रेडियस इज कैपिटल आर, हाइट इज एच, सो दिस इज 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस इनर रेडियस इज स्मॉल आर, इनर रेडियस स्मॉल आर, इसका क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर एच, सो दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर इज देयर. Okay, now the right circular cone we are talking. Right circular cone क्या होता है, दोनों साइड से, दिस इज योर नोन एज स्लैंट हाइट, मीन्स हाइट विच इज इंक्लाइंड ऑन ए पर्टिकुलर एंगल, कोई भी हाइट है, देखिए हाइट क्या है 90 पर फॉलो 90 पर, लेकिन इफ इट इज इंक्लाइंड, किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, तो दिस इज मीन्स ऐसे समझिए, सपोज दिस इज योर रॉड, दिस इज योर रॉड एंड द लेंथ इज 5 मीटर, तो अगर द रॉड इज लाइंग ऑन द सरफेस, तो वी विल से व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, दैट इज लेंथ इज 5 मीटर. लेकिन अगर इफ यू आर गोइंग टू स्टैंड आउट एट 90 हियर, देन वी विल से द हाइट ऑफ दिस रॉड इज 5 मीटर, दिस वन. इफ द रॉड इज लाइंग ऑन द सरफेस, अगर रॉड जमीन पर लेटी हुई है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ क्या है, लेकिन अगर इसी रॉड को हम 90 पर खड़ा करें तो वी विल से द हाइट इज व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस रॉड. लेकिन दिस रॉड इज इंक्लाइंड ऑन अ पर्टिकुलर एंगल, ये अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड किसी एंगल पर, तो दिस इज द स्लैंट हाइट, दिस इज नोन एज ए स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट. दिस इज एक्चुअल द हाइट ऑफ दिस वन इज देयर, ये इसका हाइट है, तो स्लैंट हाइट दैट इज इंक्लाइंड, ये क्या इंक्लाइंड है on a particular angle, so slant height is nothing else that is inclined on a particular angle, height is it should fall at the 90s there, so this thing is keep in mind. See now, तो यहाँ we are talking about the right circular cone. right circular cone का मतलब दोनों साइड से ये slant height must be equal. देखिए ये भी कोन की शेप में है, यहाँ slant height this L1 is not equal to L2, so this is not a right circular cone, this is the right circular cone. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, right circular cone की. अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ एनी ऑफ द फिगर इज ऑलरेडी डिस्कस, वो हमने क्या बोला था, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट. लेकिन यहां क्या है, लुक एट हियर कि व्हाटएवर इज द पेरीमीटर इज हियर, सेम इज नॉट हियर, सेम इज नॉट हियर, सेम इज नॉट हियर, नॉट हियर, एंड दिस इज बिकम अ पॉइंट. सो दिस जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला इन केस ऑफ दिस वन नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एवरी प्लेसेस पे पेरीमीटर इज गोइंग टू चेंज. सी, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला ऑफ द कोन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाइडेड बाई द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट. देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके दिस वन आउटर, ये वाला पोर्शन की वी वांट टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया इज देयर, जो कोन है उसके आउटर वन वी आर इंटरेस्टेड, मींस वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन,
इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वी वांट टू कैलकुलेट। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/2, रेडियस इज आर, पेरीमीटर क्या होगा इसका, सर्कल है दैट इज 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल, स्लैंट है 2 से 2 दैट इज पाई आर एल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब यू आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल सरफेस, टोटल का दिस इज पाई आर एल, तो ये क्या हुआ दिस पोर्शन, टोटल करेंगे दिस विल आल्सो बी द इंक्लूडेड दिस वन दैट इज पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज योर पाई आर, यू कैन राइट डाउन in this way, pi r bracket L plus r is there. And then if we talk about the volume of cone here, तो volume of cone is again the general formula हमने volume के लिए क्या डिस्कस किया था, volume is equal to area of base into height। लेकिन यहां इनके साथ cone ये होता है 1/3 area of the base into height। So 1/3 area of the base क्या होगा pi r square in the shape of the circle multiply by h। So this is 1/3 pi r square into h। This is the volume of the cone is there। That अभी डिस्कस करेंगे कि ये 1/3 ही क्यों होता है, that I'll discuss। लेकिन देखिए but there is a relation in h, r and l। h, r और l में रिलेशन है। देखिए दिस इज जो 90 है हाइट, तो दिस l स्क्वायर मींस स्लैंट हाइट स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r square। So this is the relation is there in slant height, height and radius। तो sometime what happen, क्या है कहीं हमको height और radius पता है, you can calculate L, तो यहाँ से L इक्वल क्या होगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। So you can calculate the slant height is there, you know the slant height, आपको slant height पता है, you know the radius, you can calculate the curved surface of the cone that is pi r L। You want to calculate the volume, sometime हमको slant height पता है, we know the radius, so you can calculate the h from here from this formula। So pi and r and h you will put, you will get the volume of the cone is here only। Have a look। Okay, now we will talk about sphere and hemisphere। sphere क्या है, like ball is in the shape of the sphere, melon is also in the shape of the sphere। मान लीजिए उसका रेडियस r है, रेडियस ऑफ दिस वन, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है, दैट आई डिस्कस अभी नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस दिस इज देयर ओनली। सो राइट नाउ केवल आप ध्यान रखिए, इफ यू नो द रेडियस बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया and curved surface area of sphere is same। Either you can say curved surface means we are talking about outer one is there, ball is there, उसका outer का डिस्कस कर रहे हैं। surface area will also be the same, so that is equal to होता है 4 into pi r square। this is the surface area of the sphere is there only। अगर मैं sphere को if you are going to cut this sphere at 90, just मेलन है 90 पे कट कर दीजिए, you will get the hemisphere is there। तो in that case the volume of hemisphere क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस वन, इसका हाफ, सो दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। हियर इज द सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया सेम, किसमें स्फीयर में, आउटर है केवल, वी आर टॉकिंग अबाउट आउटर वन। लेकिन यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड मींस ये दिस वन, दिस इज योर कर्व, दिस इज योर कर्व, ये कर्व्ड हुआ, तो हियर इज द कर्व्ड सरफेस एरिया will be equal to 2 pi r square means this outer one is there। लेकिन अगर if you are talking about, अगर हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं मीन्स टोटल, तो देखिए 2 pi r square ये क्या है, इसका अभी ये छूट गया, ये वाला पोर्शन, दिस इज इसका क्या हो जाएगा pi r square। सो देन pi r square इसमें ऐड कर दीजिए, what you will get 3 pi r square। so this is the surface area of the hemisphere is 3 pi r square is there। See, sometimes this hollow hemisphere will be there only। hollow hemisphere है, कई बार देखिए कैसे होगा, sometime this may be hollow hemisphere, you can take hollow hemisphere। this is like
like this is, as a, see, inner radius is smaller and this outer one is capital R. So if you want to calculate the volume of this metal, volume of this material, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो बाहर में से अंदर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट इज 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस दिस इनर 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दिस मेटल. लेकिन अगर इफ यू टॉक अबाउट द सरफेस एरिया मीन्स टोटल, देखिए दिस आउटर वन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस ये अंदर का दिस वन दैट इज स्मॉल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, लेकिन अब क्या बचा, ये बचा, सी लुक एट इट नाउ, ऐसे ये वाला पोर्शन दिस वन. तो स्मॉल आर बाहर में से सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, दिस वन इज देयर. तो क्या होगा, देखिए आउटर हो जाएगा कैपिटल पाई आर स्क्वायर और अंदर का क्या हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर. यू विल गेट द वॉल्यूम द एरिया ऑफ दिस वन ओनली, दिस वन. तो व्हाट यू विल गेट, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कैपिटल पाई आर स्क्वायर, दिस इज 3 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर स्क्वायर में से इसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर इज माइनस पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज यू आर गेटिंग द सरफेस एरिया ऑफ दिस वन. मींस ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, आउटर में से कैपिटल पाई आर स्क्वायर में से इनर सर्कल का सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस वन. दिस इज देयर ओनली, सिंपल. You must add is there only because we are talking about outer plus this inner and this portion is we are taking. This one is there. Have a look. Okay, now we are taking the right circular cylinder, right circular cone and hem sphere I am taking. Then now we will compare. इनको compare करिए, देखिए ध्यान से. अगर radius of a cylinder इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए कोन, जो रेडियस सिलेंडर का है वही कोन का हो, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन, जो हाइट कोन का है वही सिलेंडर का है. देन कंपेयर नाउ, देखिए लुक एट हियर नाउ, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू ये क्या है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन है. तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर एच क्या है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, यू कैन राइट डाउन हियर इज वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इट मींस अगर रेडियस और हाइट दोनों का सेम है तो एक सिलेंडर में से 3 कोन बनता है. दिस वन, लुक एट हियर नाउ, दिस 3 कोन बना, दिस वन, एक ये, this one, 1, 2 and 3. So volume of the cone is 1/3 of the volume of cylinder होता है. It means ऐसे ही यहां पर करें, volume of the cylinder is equal to 3 times of volume of cone. This is the relation is the volume and this one is there. Similarly we can create a relation in chord surface and this one also. अब देखिए यहां पर अगर मैं suppose if we take the radius of cylinder is equal to radius of cone is equal to radius of the sphere, height of the cylinder is equal to height of the cone is equal to height of the sphere. If are equal, then what you will get? What you will get now? इधर देखिए, अगर ये तीनों का इक्वल है तो इसको लें, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर बराबर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब. मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर. तो दिस द रेडियस ऑफ दिस वन, बिकॉज द रेडियस ऑफ हाइट ऑफ द स्फीयर क्या होता है, जो हाइट ऑफ द स्फीयर ही रेडियस होती है, हाइट ऑफ द स्फीयर दैट इज इक्वल टू द आर इटसेल्फ. जो स्फीयर है, बॉल है, उसका हाइट भी तो दिस इज द मीन्स जस्ट इक्वल टू दिस रेडियस इज देयर ओनली, मीन्स वी आर टेकिंग द हाइट इज द सेम इज देयर. सो दिस 1 आर वी आर ट्रीटिंग एज ए हाइट ऑफ दिस वन इज देयर. तो ये क्या मिला, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ दिस इज व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन. वी आर ट्रीटिंग दिस हाइट मींस दिस आर इज इक्वल टू द एच इटसेल्फ इज देयर ओनली. अदरवाइज यू विल से दैट हाइट इसका 2h होगा. आई एम टॉकिंग द हाइट ऑफ द स्फीयर, ये क्या h, दिस इज h, रिमेंबर
h, जो r है ना, ये क्या h है, height of the sphere है, this one is there. So that volume of the cone, 4 times of the volume of the cone, you will get the volume of the sphere. Similarly, volume of the sphere, that is 4 over 3 into pi r square into r. This is your h. Then means the height is also equal to the radius of this one. That is equal to the radius of this cone and cylinder. In that case, it will be equal to what? Over volume of the sphere is equal to 4 over 3 into volume of cylinder. So there is a relation. There is a relation is there only. So if the radius of this and height they are equal, if all are equal, here is the, there should be no confusion. यहाँ कोई confusion नहीं करना. यहाँ height of the sphere को हम इनका height means they are all are equal. You can say ऐसा बोल दीजिए कि ये सब equal हैं. All are equal. Means radius of the cylinder is equal to radius of the cone is equal to radius of the sphere is equal to height of the cylinder is equal to height of the cone is equal to height of the sphere. Like ऐसे समझिए. There should be no confusion. ये सब equal हैं. So in that case, उस केस में क्या होगा? स्फीयर का वॉल्यूम 4 टाइम्स ऑफ द कौन होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 over 3 टाइम्स ऑफ सिलेंडर होगा. यहां से अगर करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर क्या हो जाएगा, 3 over 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. लेकिन कब, जब ये कंडीशन, दिस इज हैव अ लुक.